জামুরিয়া বাহাদুরপুর ব্লক বাসিন্দা মঙ্গল ঘোষ বিগত 20/12/2021 সোমবার সকাল 9টা থেকে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়েছেন। মঙ্গল ঘোষ তিনি হরিপুর যাওয়ার জন্য বাড়ি ছেড়েছিলেন। সেই সময় তিনি পরেছিলেন নীল রঙের প্যান্ট আর একটি আকাশী রঙের সোয়েটার। যে ব্যক্তি তাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে এবং ঠিকানা বলবে তাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে। আমাদের ঠিকানা জামুরিয়া বাহাদুরপুর ব্লক বিজয়নগর। আপনি আমাদের সাথে 9332605334 আর 8918881791 নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। क्रिसमस डे यानी बड़ा दिन, और इसी दिन प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। यीशु के जन्मदिन को पूरा विश्व मनाता है। भारत में भी क्रिसमस को नेशनल हॉलिडे के रूप में मान्यता दी गई है। रानीगंज के वेस्टलैंड मेथोडिस्ट चर्च, जो कि गिरजापाड़ा में स्थित है, यहाँ क्रिसमस के त्यौहार को लेकर तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई थी। शनिवार सुबह सबसे पहले सभी धर्म के लोग प्रभु यीशु के जन्म दिवस को मनाने के लिए इकट्ठे होने लगे। फादर ने सभी के साथ प्रार्थनाएं सभा की। इसके बाद केक काट कर यीशु के जन्म दिवस को मनाया गया। प्रार्थना में सभी लोगों ने विश्व में शांति और महामारी को खत्म करने की प्रार्थना की। ईसाई धर्म के मान्यता के अनुसार प्रभु यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, जिसकी वजह से इस दिन को क्रिसमस के तौर पर मनाया जाता है। माना जाता है कि यीशु मसीह ने इसी दिन मरियम के घर जन्म लिया था। प्राचीन कथा के अनुसार मरियम को एक सपना आया था। इस सपने में उन्हें प्रभु के पुत्र यीशु को जन्म देने की भविष्यवाणी की गई थी। इस सपने के बाद मरियम गर्भवती हुई और उनको गर्भावस्था के दौरान बेथलेहम में रहना पड़ा। एक दिन जब रात ज्यादा हो गई तो मरियम को रुकने के लिए कोई सही जगह नहीं दिखी। ऐसे में उन्होंने एक ऐसी जगह पर रुके जहां पर लोग पशुपालन किया करते थे। उसी के अगले दिन 25 दिसंबर को मरियम ने प्रभु यीशु को जन्म दिया था। इसी वजह से इस दिन को क्रिसमस के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि प्रभु यीशु ईसाई धर्म की स्थापना किए थे। নমস্কার, আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল পিবিটিভি। একরাশ আনন্দে মাতোয়ারা আজ শহরবাসী। এই মুহূর্তে ঠিক আমরা রয়েছি রানীগঞ্জের গির্জাপাড়া স্থিত ওয়েসলিয়ান মেথোডিয়াস চার্চের ঠিক সামনে। আজকে 25শে ডিসেম্বর, যীশু খ্রিস্টের জন্মদিন। আপনাদেরকে দেখাবো সব ধর্মের মানুষ কাতারে কাতারে আজ চার্চ প্রাঙ্গণে পুরো ভিড় এখানে চলছে। এখানে অনেক মানুষ মোমবাতি জ্বালাচ্ছে এবং ঠিক মানুষের ভিড় আপনাদেরকে ঠিক দেখাচ্ছি কত মানুষ এখানে সমাগম, কত মানুষের সমাগম এবং চার্চকে সুসজ্জিতভাবে সাজানো হয়েছে। ঠিক একটু পরে আমরা ঢুকবো ভেতর প্রাঙ্গণে, যেখানে প্রভু যিশুর আরাধনা চলছে এবং কত মানুষ সেখানে রয়েছে। বিস্তারিত জানতে আমরা এখানে কথা বলে নেব যারা এখানে একত্রিত হয়েছে জনসাধারণের সাথে এবং এই ওয়েস্টলিয়ান মেথোডিস্ট চার্চের ফাদারের সাথে। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। आप लोग आए हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ?
दिन जैसे कि सभी को मनाया जाता है, सारे रिलीजन सबको मिलजुल कर मनाया जाता है। कैंडल जलाएं आप? जी हाँ। क्या नाम हो आपका? यास्मीन, आप कहाँ से आए हो? अहमदनगर। আজ 25 ডিসেম্বর নর্মালি তো জিজাসের বার্থডে অ্যান্ড এই দিন চার্চ সবাই আসে, আমিও এসেছি। এটা জাস্ট নর্মালি। আচ্ছা, কি করবেন আজকে চার্চে এসে? হাতে দেখছি ক্যান্ডেলের প্যাকেট, কি করবেন? জিজাসকে ক্যান্ডেল দেবো, উইশ করবো যাতে সব কিছু ভালো রাখে অ্যান্ড সবাই যেমন ঘুরতে আসে ফ্রেন্ডের সাথে, আমরা কি নাম আপনার? বাড়ি? বারিশিয়া। क्या मतलब आज का दिन पालन कर रहे हैं, किस हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं? क्या किए यहाँ के? यहाँ पर आपके चर्च कैंडल्स लगाए और स्पीच सुने और स्पीच मतलब किस विषय का स्पीच दिया जा रहा है अंदर? क्रिसमस के बारे में। अच्छा, और कितने मतलब आप लोग दोस्तियारी एक साथ आए हैं सब टोटल? हाँ, आज आपका नाम? मेरा नाम अमन है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? নবীনগর। এসে ক্যান্ডেল জ্বালিয়ে সবাই বন্ধুদের সঙ্গে এনজয় করে পার্টি করে এই করে আজকে বিশেষ দিনটা মানে কারণ বিশেষ দিন আজকে মানা হচ্ছে। খ্রিস্টের জন্মদিন হিসেবে আমরা এটাকে যেহেতু পালন করি, তাই সো এটা হিসেবে আমরা একটু এনজয় করতে চাইছি, ওনার দিনটাকে সেলিব্রেট করে প্রে করে ওনাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে। আচ্ছা, কিভাবে শ্রদ্ধা জানান? বাইরে ক্যান্ডেল জ্বালিয়ে এগুলো বলুন। হ্যাঁ, বাইরে ক্যান্ডেল জ্বালিয়ে ভেতরে একটু প্রে করে। আচ্ছা, ভেতরে মানে চার্চের ভেতর পরিসরে কি প্রায় মানে প্রভু যিশুর আরাধনা চলছে, হ্যাঁ প্রার্থনা? হ্যাঁ হ্যাঁ, আরাধনা চলছে। ওখানে আমরা কিছুক্ষণ ছিলাম, এখন ওনাকে নিয়ে কিছু বলা হচ্ছে, শ্রদ্ধা ওনার সম্পর্কে আর যদি কিছু মানে বিস্তারিত বিস্তারিত জানানো হচ্ছে। সো আমরা ওখানে যাচ্ছি আর একটু ছবি তোলা আর কি সবার সঙ্গে। কি নাম আপনার? সুচিস্মিতা পাল। বাড়ি? আমার বাড়ি সাহেবগঞ্জ। আমরা রানিগঞ্জ মেথডিস্ট চার্চ থেকে আমি বলছি। আমাদের এই শুভ বড়দিনের শুভেচ্ছা আপনাদের সবাইকে। আর আমরা এই চার্চে আসি, আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের আজ জন্ম হয়েছিলেন বেথলেহেম গোশালায়। সেখানে উনি আমাদের প্রভু যীশু ত্রাণকর্তা, আমাদের জন্য এসেছিলেন আমাদেরকে পাপের থেকে উদ্ধার করতেন। আর আমরা তারই জন্মদিন আমরা উদযাপন করছি এবং আমরা কাল রাত থেকে আমরা এটা সংকীর্তন করি। আমরা প্রভু যীশুর গান গেয়ে বেড়াই, বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে প্রচার করি। আর আমরা আজকে চার্চে আসি এবং আমাদের ফাদার আছেন, উনি আমাদেরকে ওনার বিষয়ে আরও বলেন। আর আমরা কেক কেটে সেলিব্রেট করি, যেমন আমরা নিজেদের জন্মদিন সেলিব্রেট করি, সেরকম আমরা প্রভু যীশুর জন্মদিনকে সেলিব্রেট করি। আর আপনারাও তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আপনারাও সবাই সেলিব্রেট করুন প্রভু যীশুর জন্মদিন। রক্তিমা দাস, বাড়ি? রানীগঞ্জ খ্রিস্টানপাড়া। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। क्रिसमस के त्यौहार पर दुर्गापुर विधाननगर इंडियन पेंटेकोस्टल हॉली चर्च में एक कार्यक्रम आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस नेता तरुण राय उपस्थित थे। तरुण राय प्रभु यीशु के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर केक काटकर बच्चों के बीच वितरित किए। उन्होंने बड़े दिन और आने वाले नए साल के उपलक्ष्य पर सभी को शुभकामनाएं दी। प्रदेश कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हम सभी आने वाले नए साल में पूरे विश्व से कोरोना को मुक्ति देने की प्रार्थना करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में चर्च के प्रधान क्रिस्टल राजेश प्रसाद, उनकी पत्नी विभू रानी मुर्मू, नंद बिहारी यादव, सुरेश यादव सहित कई लोग उपस्थित थे। প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই মিস্টার রাজেশ, বিভু রানীকে। কাল এই মহত্বের অনুষ্ঠানে
আপনাদের সঙ্গে এই প্রার্থনা সভায় আমিও হাজির থাকতে পেরেছি। আজকে বেশি করে প্রভুর কাছে আজকে চাওয়ার একটাই কথা, যে বিশ্ব যেভাবে চলছে, যেভাবে করোনা প্রভাবের সঙ্গে আমরা লড়াই করছি, এই কয়েকটি বছর খালি দুঃসংবাদ আর দুঃসংবাদ মানুষের মুখের হাসি কেড়ে নিয়েছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রভুর কাছে আমাদের প্রার্থনা, প্রভু। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के चुनाव की घोषणा होते ही शिल्पांचल में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विदित हो कि 22 जनवरी 2022 को आसनसोल नगर निगम के लिए चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए रानीगंज में भी टीएमसी की तरफ से सभी प्रकार की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रानीगंज के 89 नंबर वार्ड इलाके में मुजम्मिल शहजादा अंसारी के नेतृत्व में दीवार लेखन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर मोहम्मद अराफत, आफ्ताब आलम, एसएम लड्डू अजहर सहित 89 नंबर वार्ड के तमाम तृणमूल कार्यकर्ता उपस्थित थे। मुजम्मिल शहजादा अंसारी ने बताया कि आसनसोल नगर निगम के चुनाव की घोषणा होते ही 89 नंबर वार्ड के टीएमसी कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं और दीवार लेखन का कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने आशा जताई है कि आने वाले चुनाव में रानीगंज की जनता टीएमसी को भारी मतों से विजय बनाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में विकास के जो कार्य पूरे प्रदेश के साथ आसनसोल नगर निगम इलाके में हुए हैं, उसके बाद विपक्ष के पास जीतने का कोई मौका नहीं। उन्होंने रानीगंज की जनता से आने वाले चुनाव में टीएमसी को भारी मतों से विजय बनाकर ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करने की अपील की, जिससे कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की प्रधानमंत्री बन सके और प्रदेश में जिस तरह से विकास कार्य उन्होंने किए हैं वो पूरे देश में कर सके। म्यूनसिपल चुनाव का, कॉर्पोरेशन चुनाव का ऐलान हो गया 22 जनवरी 2022। उस सिलसिले में हम लोग वाल ब्लॉक का कार्यक्रम चालू किया। आज से हम लोग दीवार को ब्लॉक करने का काम चालू किया। रानीगंज के आवाम से हमारा ये मैसेज है कि महामाटी मानुष ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत किया जाए। जिस तरह डेवलपमेंट के काम कर रही है हमारे चीफ मिनिस्टर, तो इस मैसेज को हम लोग दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट हम लोग को टीएमसी को दे और पार्टी को मजबूत करें, ममता बनर्जी को हाथ को मजबूत करें। आने वाला 2024 में दिल्ली का प्रधानमंत्री बने, देश का प्रधानमंत्री बने। दिल्ली पहुंचाने के लिए हम लोग पूरा भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये क्या 9 वार्ड में कर रहे हैं, और भी वार्ड में चालू होगा, सब कर रहा है। मैंने आप अपना वार्ड से 89 नंबर वार्ड से 89 से चालू किए हैं और साधन भाई भी किए हैं। रानी सर, क्या नाम है आपका? नाम मुजम्मिल शहजादा 9 रानी है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन यानी क्रिसमस के अवसर पर आज रानीगंज के गिरजापाड़ा इलाके में स्थित फाटक द्वार के पास समाज सेवी राजू सिंह के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्थानीय बच्चों के साथ मिलकर केक काटे गए और उनको मिठाइयां खिलाई गई। कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि आज के कार्यक्रम के दौरान राजू सिंह के आह्वान पर सभी धर्मों के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे।
इनमें रानीगंज गुरुद्वारा कमेटी के सचिव रविंदर सिंह, मोहम्मद सलीम के साथ साथ अजय जैसे क्रिश्चियन धर्म के लोग भी थे। वहीं बल्लभपुर फाणी के आईसी तापस कुमार मंडल ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। सभी ने राजू सिंह की इस पहल की तारीफ की और कहा कि ऐसे ही कार्यक्रमों की समाज को जरूरत है जो समाज को एक सूत्र में पिरो सके। वहीं राजू सिंह ने सभी सल्पांचल वासियों को क्रिसमस की हार्दिक बधाइयां दी और कहा कि बंगाल सर्वधर्म समभाव की धरती है। यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। सभी को बंगाल की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समाज को एकजुट करने की कोशिश करती रहनी चाहिए। बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, सभी को बड़े दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई आज के इस पर्व की। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर को जो क्रिश्चियन भाई लोग हैं वो इस दिन को बहुत एक बड़े दिन के रूप में मनाते हैं। उनका विश्वास है कि आज ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था और पूरा संसार इस खुशियों को बांट रहा है और मना रहा है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर जो एक प्रोग्राम किया गया है सोशल वर्कर राजू सिंह के नेतृत्व में, मुझे यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ पर आप लोग जिस बस्ती को लोग जानते तक नहीं है, जिस एरिया को लोग जानते नहीं है, जो अंडर प्रिविलेज एरिया है, वहाँ के लोगों के बीच में आकर के और इस खुशियों को बांटना, बच्चों के बीच में केक का वितरण करना और उनको एक खुशी का एहसास कराना, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि यहाँ हम सभी जानते हैं कि यहाँ के जो आज आयोजक हैं, यहाँ के जो राजू सिंह के और उनके साथी जो हैं, ये विभिन्न समय पे अलग अलग समय पे समाज की सेवा अलग अलग तरीके से करते आए हैं। ये बहुत खुशी की बात है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके जितने भी यहाँ साथी हैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। क्योंकि जैसा कि समाज से हम लोग भले वो बिज़नेस करें, भले वो सर्विस करें, किसी भी तरीके से अपनी सेवाएं दे करके समाज से हम लोग बहुत कुछ लेते हैं। हर मनुष्य के लिए ज़रूरी है कि हम समाज को भी कुछ लौटा सकें। और एक समाज की तरफ से रानीगंज सिटीजन फोरम के सेक्रेटरी होने के नाते रानीगंज की समस्त नागरिकों की तरफ से आप सभी को फिर से बधाई देता हूं और आशा करता हूं। ভালো কথা বলেছেন। আমরা মানুষ, আমাদের সমাজের থেকে শুধু নিলে হবে না, সমাজকে কিছু দিতে হবে। এখানে অনেক ছোট ছোট বাচ্চা আছে যারা এই অনুষ্ঠানটা ভালো করে এনজয় করতে পারে না, তাদের পাশে এখানকার যে মানুষ এই প্রোগ্রামটা তৈরি করেছে, প্রোগ্রামটা চিন্তাভাবনা করেছে, এর জন্য তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি এই ধরনের অনুষ্ঠানে আবার আসতে পারলে, আবার পাশে থাকতে পারলে অনেক অনেক খুশি হব। বাচ্চাদের আনন্দ দিতে পারলে ওরাই সমাজকে সুন্দর করে তুলবে, আগামী দিনের সমাজ এরাই গড়বে, এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। हमारे भारतवर्ष एक सभी धर्मों को लोग यहाँ निवास करते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग हमारे भारतवर्ष में रहते हैं। तो इस तरह हम लोग दुर्गा पूजा हो, चाहे काली पूजा हो, ईद, बकरीद, कोई भी धर्म का हम लोग मानते हैं। जैसे हम लोग गुरु नानक जयंती को भी हम लोग मनाते हैं बहुत प्रेमपूर्वक और श्रद्धा के साथ। उसी तरह आज 25 दिसंबर का दिन हमारे प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन है। आज के दिन हम लोगों ने उनके जन्मदिन को उपलक्ष्य में बच्चों के बीच केक वितरण का प्रोग्राम रखा है। बच्चे यहाँ हमारा एक बस्ती है, इस बस्ती में हम लोग किसी भी बस्ती है बच्चे लोग खाली जाने नहीं देंगे, सभी को खिलाएंगे। जो लोग घर घर तक भी हम लोग पहुँचाएंगे, ठीक है। इसका कोई लिमिट नहीं है कि 1000 पीस 2000 पीस हम लोग। नाम कौन सा एरिया? 91 नंबर वार्ड। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। जीसस क्राइस्ट के जन्म दिवस यानी क्रिसमस के मौके पर अन्य जगहों की तरह बांकुड़ा में भी क्रिसमस की धूम देखी गई। मौके पर बांकुड़ा के प्राचीनतम चर्चों में से एक स्कूल डांगा मोड़ स्थित बांकुड़ा सेंट्रल चर्च में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई।
दूर दराज से लोगों का आगमन लगा रहा। सुबह से ही प्रार्थना सभा में लोगों ने हिस्सा लिया एवं कैंडल जलाई। एक तरफ प्रार्थना सभा तो चर्च परिसर में सेंटा क्लॉज द्वारा बच्चों के बीच उपस्थित रहकर उन्हें आनंद एवं खुशी प्रदान करते देखा गया। साथ ही अपनी पोटली से चॉकलेट्स, केक, बिस्किट, बैलून एवं गिफ्ट प्रदान करते देखा गया। ঠিক সেই রকম যেন প্রাণ খুলে বাঁচে, প্রাণ খুলে যেন বাঁচে সবাই। আমি এসেছি আপনাদের কাছে এই কামনাই করতে, যাতে সবাই প্রাণ খুলে বাঁচতে পারে। আমাকে বাঁকুড়াবাসী চিনতে পারছো? সেই তোমাদের শ্রিয়া হাজির হয়েছে তোমাদের কাছে আজকে চার্চে। যিশু খ্রিস্টের আশীর্বাদ নিয়ে আমি চলে এসেছি এই ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদের কাছে আজকে আনন্দ দিতে। আমার বহুদিনের ইচ্ছে যে গত বছরও আমি করেছিলাম, এই ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদেরকে নিয়ে চার্চে এসেছিলাম, কেউ বুঝতে পারেনি। এই বছরও চলে এসেছি। এই বাচ্চাদের যে হাসিটা, এটা মুখোশের। साथ ही लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी किया गया। मौके पर सेंटा क्लॉज की वेशभूषा में कलाकार द्वारा लोगों को कोरोना के प्रति यही संदेश दिया गया कि छोटे छोटे बच्चे जी भर कर हंस खेल सके। बांकुड़ा शहर के सर्कस मैदान स्थित अन्य चर्च में भी लोगों की भीड़ देखी गई। जिले के सारंगा स्थित मिशन चर्च में भी चहल पहल देखी गई। बाजारों में केक की खरीदारी भी देखी गई। मौके पर भूतपूर्व विधायक शोम्पा दरीपा द्वारा प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया गया एवं लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी गई। विभिन्न वर्गों के लोगों का जमघट सेंट्रल चर्च आकर्षण का केंद्र बना रहा। বছর পর আজও সমান প্রাসঙ্গিক প্রভু যীশু খ্রিস্ট মানবপুত্র আমাদের জন্য ক্রুশে প্রাণ দিয়েছিলেন শুধু আমাদের পাপ হরণ করার জন্য। আর তার শ্রেষ্ঠ উপদেশ হচ্ছে মানুষকে আপনার মতো প্রেম করে। এই প্রেম আমরা ভুলে যাই, ভালোবাসা আমরা ভুলে যাই। তিনি আর একটা কথা বাইবেলে লেখা আছে, যদি কারোর সঙ্গে কোনো বিবাদ করো সূর্যাস্তের আগে তাহা মিটিয়ে নাও। তো আমরা পারি না, না ক্ষমা না সেবা, তাই বারবার তার কাছে ফিরে আসি। আমাদের সেই ক্ষমা সুন্দর চিত্ত দাও, সেই সেবার মনোভাব দাও, যে সেবা তুমি বিশ্বের জন্য করে গেছিলে এবং যে ক্ষমা তুমি বিশ্ব মানবকে শিখিয়েছিলে, তা আমাদের বারবার করে আমাদের মনকে তুমি নাড়িয়ে দাও, যাতে এই বিশ্বে যেন সেই সুন্দর পরিবেশ আসে এবং যে সকাল আমরা দেখতে চাইছি সেই সুন্দর সকাল যেন আসে আর রাত্রির অমানিশা যেন কেটে যায়। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस,
Pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। जामुड़िया बहादुरपुर ब्लॉक के रहने वाले 73 वर्षीय मंगल घोष बीते 20/12/2021 सोमवार सुबह 9 बजे से घर से लापता हैं। हरिपुर जाने के लिए घर से निकले मंगल घोष ब्लू पैंट और स्काई रंग की स्वेटर पहने हैं। उन्हें घर पहुंचाने और पता बताने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। हमारा पता है जामुड़िया बहादुरपुर, विजयनगर। हमें संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9332605334 और 8918881791। बड़े दिन के उपलक्ष्य पर माइथन डैम जगमगा उठा है। दूर दूर से लोग इस पर्यटन स्थल पर घूमने पहुंच रहे हैं। आज से ही पिकनिक मनाने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। ये पिकनिक आने वाले नए साल के उपलक्ष्य पर मनाई जाती है, जिसे देखते हुए पुलिस द्वारा शांति और सुरक्षा के तहत जांच भी चलाई जा रही है। ज्यादातर लोग पिकनिक मनाने के साथ ही शराब का सेवन करते हैं, जिससे माहौल भी खराब हो उठता है। इसे ध्यान में रखते हुए कुल्टी ट्रैफिक ACP सुकांतु बनर्जी और कुल्टी ट्रैफिक ACP 1 देवव्रत दास की उपस्थिति में पूरे पर्यटक स्थल का जायजा लिया गया, जहां पिकनिक स्पॉट से 25 लोगों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही माइथन घूमने आए लोगों की गाड़ियों की तलाशी ली गई। 2 चक्का और 4 चक्का वाहनों को रोककर सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने पर जोर दिया गया, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। আপনাদের সবাই এত অ্যাড করছি, এত আমরা প্রোগ্রাম বানাচ্ছি, বেকার হয়ে যাচ্ছে না সব কিছু। আমাদের ভালোর জন্য তো নয়। না না, आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PB न्यूज।
क्रिसमस के साथ ही आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस भी है। उनके जन्म दिवस को भाजपा की तरफ से जगह जगह मनाया जा रहा है। रानीगंज भाजपा पार्टी की तरफ से भी NSB रोड स्थित शनि मंदिर के पास उनकी तस्वीर पर माल्यादान कर, दीप जलाकर और राहगीरों के बीच लड्डू बांटकर मनाया गया। इस दौरान भाजपा के शहर मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नए भारत का सपना देखा था, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरा किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भले ही हम बंगाल के विधानसभा चुनाव और नगर निगम चुनाव को ना जीत सके, लेकिन नए बंगाल के निर्माण का बिगुल बज चुका है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रानीगंज शहर में कदम भी रखा था और उन्हीं के सपनों, उन्हीं के आदर्शों पर भाजपा पार्टी चल रही है। रानीगंज विधानसभा कन्वेनर मदन त्रिवेदी ने कहा कि आज हम सभी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 97वें जन्म दिवस को मना रहे हैं। वे एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने UN में अपना भाषण दिया था। उनके युग में कारगिल जैसे युद्ध होने के बावजूद भी महंगाई को कम करने में कामयाबी हासिल की थी और वह युग स्वर्ण युग कहलाया था। अब फिर से उसी युग को लाने की कोशिश की जा रही है। आज के इस कार्यक्रम में भाजपा की तरफ से रानीगंज शहर मंडल अध्यक्ष राजेश मंडल, रानीगंज विधानसभा कन्वेनर मदन त्रिवेदी, महासचिव देव कुमार बोस, रवि केसरी, तुहीन मान्ना, रानीगंज मीडिया कन्वेनर गोपाल पारिक, अजीत केसरी, आलोक देव पांडे उपस्थित थे। श्रद्धेय अटल जी का जन्म दिवस हम लोग भारतीय जनता पार्टी रानीगंज मंडल 1 के द्वारा सभी सहकर्मियों के साथ मिलकर बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। अटल जी का परिचय शायद उनको शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता है। ऐसे महान व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, भारत रत्न थे। उन्होंने जो नए भारत का सपना देखा था, आज माननीय मोदी जी के शासनकाल में उस नए भारत को बनाया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा था कि सत्ता आती है जाती है, राजनीतिक पार्टियों का निर्माण होता है और ध्वंस होता है। तो बंगाल में इस बार हम लोग सत्ता में नहीं आए, लेकिन नए बंगाल के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी हमेशा लगी रहेगी। उन्हीं के आदर्श के साथ हम लोग हमेशा रहेंगे। आपका नाम परिचय? राजेश मंडल, भारतीय जनता पार्टी रानीगंज बीजेपी सभापति। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के আমরা আজকে তার জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলাম। আর শুধু রানীগঞ্জ নয়, গোটা ভারতবর্ষ এবং বিদেশের অনেকে শুভানুধ্যায়ী যারা অটল বিহারীর আদর্শকে ভালোবাসে তারা তাকে আজকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। তিনি শ্রদ্ধা জানানোরই পাত্র। তার জীবনী সম্পর্কে বলতে গেলে অনেকটা সময় লেগে যাবে, তবুও সংক্ষেপে তার কিছু কথা পূর্বতন বিধানসভা সংযোজক মাননীয় মদন ত্রিবেদী বলেছেন। আমরা একটা কথা শুধু বলবো, আজকের এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমরা তার আদর্শকে নিয়ে এগিয়ে চলেছি। একদিন দুটো যখন আমাদের আসন ছিল তখন পার্লামেন্টে তিনি একটি কথা বলেছিলেন, আজকে যারা আমাদের এই দুটো আসন থেকে হাসছেন তারা দেখতে পাবেন যে এই ভারতীয় জনতা পার্টি কতগুলো সংখ্যা, সেই সংখ্যা থেকে আমরা জানি একটা ঘরের বুনিয়াদ যদি খুব শক্ত হয় সেই ঘরের ওপর আরও ঘর যেমন নির্মাণ হতে পারে, ভারতীয় জনতা পার্টির বুনিয়াদ তিনি ছিলেন, তিনি তৈরি করে গেছেন। আমরা ভীত নই। 300 বেশি আসন পেয়ে যেমন আমরা গর্বিত নই, দুটো আসন পেয়েও আমরা কিন্তু শঙ্কিত ছিলাম না। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির প্রেক্ষাপটেই আমরা সেই কথাটা বলি। আগামী দিনের রাজনীতিতে আমরা দুর্বার গতিতে তার দেখানো পথে এগিয়ে যাব। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম দেব কুমার বোস, भारतीय जनता पार्टी रानीगंज मंडल 1 साधारण संपादक। भारत रत्न UNO में हिंदी में पहली बार संबोधित करने वाले कवि हृदय पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज 97वां जन्मदिन है और हम लोगों ने उनके आदर्श को सामने रख करके सर्वे भवन्तु सीखना जो आदर्श था उनका, उन्होंने
पूरे भारतवर्ष में प्राथमिक शिक्षा में और सड़क के परिवहन में जो उनका काम रहा है, कारगिल जैसे युद्ध होने के बावजूद महंगाई को जिस तरह से उन्होंने काबू में रखा, ये सब अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक चारित्रिक गुण है जो उनके प्रधानमंत्रित्व काल में भारत स्वर्ण युग में चल रहा था। और आज माननीय मोदी जी के युग में ये जो है हीरक युग चल रहा है। भारत जो है लगातार कोरोना के काल में भी लगातार प्रशस्ति के ऊपर में है। ये सब अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा रोपित बीज जो है वो फल दे रहा है और उसी के आधार पर हो रहा है। इसलिए आज हम लोग उसने श्रद्धेय अटल जी का तिलक लगा करके पुष्पांजलि अर्पित करके और धूप दीप के साथ नैवेद्य चढ़ा करके हम लोगों ने आज उनका जन्मदिन मनाया है और लड्डू वितरण किया। आपका नाम परिचय दीजिए। मदन त्रिवेदी, विधानसभा कन्वीनर, रानीगंज विधानसभा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।